Hello everyone, this is Dr. Neeta Saxena, Associate Professor, Sage University, Bhopal. I am going to deliver a short lecture on introduction of matrices. Before starting the section, learner should be familiar with the rules of numerical algebra, such as it means simple multiplication, addition and subtraction. After completing the section, you will be able to recognize the use of basic terminology associated with the matrix. You will be able to do addition, subtraction with two given matrices, as well as state that the operation is not possible, multiplication of matrices, and express a system of linear equation in matrix form. These are some contents we will cover in this lecture. So first of all, what is a matrix or what are matrices? Matrices means simple arrangement of elements in the form of row and column. In this example, A is a matrix which contains 2 rows and 3 columns. B is a matrix which contains 3 rows and 3 columns. So matrix is simple arrangement of elements in the form of row and column. Now, what are the rows and what are the columns? This is the mathematical definition of a matrix. It is a rectangular array of numbers arranged in the form of row and column. Matrix provide a method of organizing, storing and working with mathematical information. Matrix have so many applications in the use of and the use in the real world. So how can we implement the operation? Which type of matrices are there? We will discuss. See, consider the following set of equation. X plus y is equal to 7, 3x minus y is equal to 5. After solving with the this equation with the help of elimination method or subtraction method, substitution method, we will easily get the value of x is equal to 3 and y is equal to 4. But if you have more than 3 or 4 elements, जैसा कि इस एग्जाम्पल में है, यहाँ पर 4 इक्वेशंस हैं और इन 4 इक्वेशंस में 3 वेरिएबल्स हैं, x, y, z, दीज आर द वेरिएबल्स. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अगर आप इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है. सो सी, दिस इज अ मैट्रिक्स. रोज क्या हैं, कॉलम क्या हैं, ये देखिए. इट इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स. दीज आर कॉल्ड अ रो. दिस इज रो 1, इसे आप R1 से डिनोट कर सकते हो. दिस इज रो 2, इसे आप R2 से डिनोट कर सकते हो. दिस इज रो M, इसे आप RM से डिनोट करते हो. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है A1, A2, A3, A11, A12, A13 अप टू A1n, ये फर्स्ट रो हुआ, सेकेंड रो हुआ, थर्ड रो हुआ. अगर आप इसका वर्टिकल देखेंगे, कॉलम वाइज देखेंगे, तो ये हुआ आपका फर्स्ट कॉलम. दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड डिनोटेड बाय C1. ये आपका सेकेंड कॉलम है, इट इज डिनोटेड बाय C2. और ये आपका nth कॉलम है, इट इज डिनोटेड बाय Cn. तो कितनी रो है इसमें? m रो है और n कॉलम है. तो इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, नंबर ऑफ रो into number of column. This is called the order of a matrix. And see, if you take A22, अगर आप इस एलिमेंट को देखें तो 2 मतलब सेकेंड कॉलम का एलिमेंट,
और सेकेंड 2 का मतलब है सॉरी इस 2 का मतलब है सेकेंड रो का एलिमेंट, और इस 2 का मतलब है सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। अगर आप A2n को लेते हैं तो ये जो फर्स्ट डिजिट है 2, ये मैट्रिक्स की रो में पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकेंड वैल्यू है n, ये मैट्रिक्स की कॉलम में पोजीशन को डिसाइड करती है। AM1 ये एक एलिमेंट है जो mth रो में है और फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो उसके सफिक्स के थ्रू। तो दिस इज समथिंग अबाउट रो, कॉलम एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए m एंड n, m नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम है, और ये m क्रॉस n या m इंटू n मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर से आप किस तरह से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर आते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको आप वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, m इज इक्वल टू n, मतलब जितने रो हैं उतने ही अगर कॉलम है तो इस मैट्रिक्स को आप कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा 2 2 1 -1, इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो 2 ही रो हैं इसमें और 2 ही कॉलम्स हैं, so it is a square matrix of order 2 cross 2. In the similar way, if you take A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. So how many rows and columns are there? There are 3 rows and 3 columns. So it is also called a square matrix. Next, equal matrix. Equal matrix means two matrices are said to be equal if their corresponding elements are equal. Corresponding element का मतलब ये है कि जो पोजीशन, जिस पोजीशन पे A में एलिमेंट है उसी पोजीशन पर B में एलिमेंट है और दोनों ही एलिमेंट इक्वल हैं। जैसे इक्वल नंबर्स होते हैं वैसे ही इक्वल मैट्रिक्स भी होते हैं। See, how can we use the equality of matrix to find some values? If A is equal to 1 0 minus 4 2, it is a 2 cross 2 order matrix, and B is A B C D. So equal matrix के लिए जो मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऑर्डर सेम होने के साथ साथ जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब 1 का जो पोजीशन है और A का पोजीशन, ये सेम पोजीशन पे हैं दोनों एलिमेंट, और अगर A और B इक्वल हैं तो A का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इन द सिमिलर वे 0 का जो पोजीशन है वही B का पोजीशन है, लेकिन जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो B इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। इन द सिमिलर वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ C इफ C इज इक्वल टू, इफ A एंड B आर इक्वल देन C इज इक्वल टू -4 एंड D इज इक्वल टू 2। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से इस तरह से आप करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं वो निकाल सकते हैं, इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नेक्स्ट टाइप है जीरो मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ matrix are 0, then matrix is said to be a zero matrix. See in this example. Next type is row matrix and column matrix. If a matrix contains only one row, केवल एक ही रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो अगर सिंगल हो, for example this one, A is equal to 4 5 6, matrix A contains only one row and 3 columns, so it is called row matrix. And if matrix contains a single column, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, then matrix is called a column matrix. तो ये और रो और कॉलम मैट्रिक्स का मीनिंग है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन्स number of row and number of columns are not equal. It may be 2 3, it may be 3 2, it may be 4 3, 1 4. M and N, number of row and number of columns are not equal, then it is called a rectangular matrix. Next type is diagonal matrix. Diagonal matrix is a particular type of square matrix. Means ये necessary है कि अगर matrix diagonal है तो वो square matrix पहले हो।
स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डायगोनल मैट्रिक्स जनरेट होता है। इसका जो लीडिंग डायगोनल है, मीन्स इसको आप प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। फर्स्ट जो डायगोनल है ए बी सी, तो सेकेंड डायगोनल कौन सा हुआ, जी बी एंड एफ, दिस वन इज कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल। तो हम लीडिंग डायगोनल की अगर बात करें तो ए बी एफ इट इज कॉल्ड अ लीडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल को छोड़कर अगर सारे एलिमेंट उसके जीरो हों तो उसे आप क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल 5 3 2, जो प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल है वो नॉन जीरो है, अदर एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 1। तो ये पर्टिकुलर टाइप का डायगोनल मैट्रिक हुआ जिसे आप यूनिट मैट्रिक कहेंगे, और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक है, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसका एक अलग नोटेशन होता है I3, इसे हम लिखते हैं I3। तो दिस 3 डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक। इसे आप लिखेंगे I2, सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक, थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक। नाउ कम ऑन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑपरेशन सम ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, या दो मैट्रिक्स को जोड़ना, कैसे आप दोनों का एडिशन कर सकते हो। तो दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए फर्स्ट जो कंडीशन है, पहली जो शर्त है, उसके अकॉर्डिंग दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी इनका एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, A is equal to, it is a matrix of 2x3 order and B is also a matrix of 2x3 order। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो हाउ कैन यू इवेल्युएट A प्लस बी, मतलब इसका आप एडिशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे, 1 + 2। ये देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैंने आपको पहले भी बताया, सेम पोजीशन के जो एलिमेंट होते हैं। 1 + 2, 2 + 3, ये 2 + 3 है, 3 + 0, ये 3 + 0, फिर 0 + -1, ये 0 + -1, 1 + 2, देन 2 + 5। इस तरह से इन सभी को आप ऐड कर दीजिए, तो ये आपका रिजल्टेंट है। इन द सिमिलर वे यू कैन फाइंड आउट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। जो आपने एडिशन किया है, सेम एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन यू गेट A - B। सो टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर। मैंने आपको पहले ही बताया दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट ऑर्डर के हैं तो इन्हें आप नहीं ऐड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर के हैं, 2x3 का मैट्रिक्स है और ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट दीज टू मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि A अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसमें आप किसी स्केलर 3 का या 2 का या 4 का या A का अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो इसका मीनिंग है 3A मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई 3। A के हर एक एलिमेंट को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ A बाई 3। These are some properties of addition and scalar multiplication. First is commutative law, A plus B। आप अगर मैट्रिक्स के एडिशन का ऑर्डर पहले A के एलिमेंट लें देन B के एलिमेंट लें, या पहले B के एलिमेंट को A में ऐड करें A के एलिमेंट में ऐड करें, ये दोनों ही सेम होते हैं। जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ आप 2 + 3 = 3 + 2 लिखते हैं, है ना। तो इन द सिमिलर वे वी कैन अप्लाई कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, A + B + C, B + C को पहले ऐड करें और उसमें फिर आप मैट्रिक्स A को ऐड करें, या A + B को ऐड करके उसमें आप C को ऐड करें, बोथ विल बी सेम। इसी तरह से लैम्डा इंटू A + B = लैम्डा इंटू लैम्डा B, these are also equal, this is called a distributive law। so these some properties related to addition and scalar multiplication। now come on an important operation that is called matrix multiplication। थोड़ा सा समझने में
या करने में थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो होने लगेगा, एकदम तो नहीं। सी, फर्स्ट कंडीशन, very first condition to multiply A and B, number of column in A is equal to number of row in B. A का अगर ऑर्डर m क्रॉस n है, मतलब इसमें m नंबर ऑफ रो एंड n नंबर ऑफ कॉलम है, तो जो B मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस p होना चाहिए। मीन्स इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तभी आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है, मैंने पहले भी बताया। देखिए, ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 है, और बी जो है वो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है। ये 3 कॉलम भी हो सकता है, 3 रोज एंड 3 कॉलम भी हो सकता है, उससे इट मेक नो डिफरेंस, बट n is equal to this should be equal, number of column of first matrix is equal to number of row in second matrix। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। now how can you multiply these matrix? फर्स्ट मैट्रिक्स से आपको रो लेना है, सेकंड का कॉलम लेना है। फर्स्ट का रो, सेकंड का कॉलम, फर्स्ट का रो, सेकंड का कॉलम। देखिए कैसे आप इसे परफॉर्म करेंगे, ये देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये देखिए, this one 1 into -1 plus 2 into 2 plus 3 into 5। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट जनरेट होगा, जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक है। मतलब ए बी जब आप लेते हैं तो ए बी का फर्स्ट एलिमेंट होगा 18। कैसे? वो 1 into -1 2 into 2 plus 3 into 5। Now again consider first row of first matrix and second column of second matrix। रो वही रहेगी लेकिन इसका कॉलम चेंज हो जाएगा। अगेन मल्टीप्लाई 1 into 2, ये देखिए 1 into 2 प्लस 2 into 3, 2 into 3 प्लस 3 into 0, 3 into 0, ये हुआ आपका 8। तो ये सेकेंड एलिमेंट होगा। अब आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका कोई भी कॉलम रिमेनिंग नहीं है जिसका फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई ना हुआ हो। अब आप वही प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर करेंगे सेकंड रो के साथ। इसका सेकंड रो लेना है, इसका फिर से फर्स्ट कॉलम लेना है, वही प्रोसीजर है। 0 into -1, ये 0 into -1, 1 into 2, 1 into 2 प्लस 4 into 5, so 4 into 5 is equal to 22। so C 2 to लास्ट एलिमेंट, अगेन वही प्रोसीजर है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम आपका बचा हुआ है। तो 0 into 2 प्लस 1 into 3 प्लस 4 into 0, ये देखिए 0 into 2 प्लस 1 into 3 प्लस 4 into 2। ये सारे एलिमेंट आपने काउंट कर लिए। अब आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट इस मैट्रिक्स में भी ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का प्रोसीजर है वो आप यहाँ भी परफॉर्म कर सकते हो डायरेक्टली, और अगर आप ऐसा करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इट इज़ एन सिंपल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को जनरलाइज किया है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस m एंड b इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1, then you can multiply by
सेम प्रोसीजर, दिस रो एंड दिस कॉलम, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस नेक्स्ट हो जाएगा A13 इंटू B31 प्लस, इस तरह से लास्ट होगा A1M इंटू BM1. So in this way we can multiply two matrix. और अगर आप इसका बी ए लेंगे तो देखिए कैसे ये कन्वर्ट होगा. आप देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब इसमें एम रो है और एम कॉलम है ना. ये m क्रॉस 1 का है और ये 1 क्रॉस m का है, तो जो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक होगा वो m क्रॉस m का होगा. These are some properties of matrix multiplication. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए. लेफ्ट साइड से आप a में मल्टीप्लाई कर रहे हैं b प्लस c का, देन इट इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड दिस इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. This is associative law with respect to multiplication and AB is not equal to BA in general. अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज करेंगे तो दोनों इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं है. एंड AB is equal to 0 not necessarily imply that A is equal to 0 और B is equal to 0. अगर A into B 0 है तो ये ज़रूरी नहीं है कि A 0 हो, कोई भी एक मैट्रिक उसमें से 0 हो. It may be, it may not be. Thank you.